असलामुअलैकुम ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੀਰੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਜ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਲਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਤੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੋਂ उसकी झोली वांझी रह जाती है। भावें वो अपनी झोली विच बहुत कुछ भर लवे, बहुत कुछ प्राप्त कर लवे, पर ममता किसनू कहंदे ने, लाड किसनू कहंदे ने, प्यार किसनू कहंदे ने, और आंतरिक हिरदे दी चाहत किसनू कहंदे ने, शायद इस सब कुछ तो वो बच्चा वांझा रह जाए। इसी तरीके नाल जे छोटा मासूम बच्चा पिता दी होंद तो वांझा रह जाए, साडे देश दे ते उसनू यतीम कहंदे ने। बहुत वड्डी घाट उसदे जीवन विच रह जाएगी। ठीक है, ये रिश्ते अपनी थां ते महान ने, पर अगां चल के जे इसनू भिरा नसीब ना होया तो कहने इस दे कोल ते बावां ही नहीं है। आदि काल तो साडे देश दे विच ये आख्या गया है कि भरा बावां होंदियां ने और मां ठंडियां छावां होंदियां ने। ये जिहड़ियां कहावतां साडे देश दे विच प्रचलित ने, इन्हां विच बहुत वड्डी सच्चाई है। और भरा तो सखना मनुख अक्सर महसूस करता है मेरी बां नहीं है, मेरे कोल बावां नहीं है। लेकिन किसी दी भैण ना होवे तां भी बराबरी, समता किसनू कहंदे ने, शायद बहुत सारियां अदुੱਤੀ गुणा तो और कोमलतावां तो वांझा रह जाए। पर अगां चल के पत्नी नहीं मिल सकी या किसी स्त्री नू पति नहीं मिल सकिया तो जीवन का जो विकास है, जो प्रफुल्लता है, वो तो सारी रुक जाएगी। वो तो ऐसा है जैसे कोई बीज वृक्ष भी बनिया होवे, सुंदर डालां भी लगी होवन, पत्ते भी बड़े सोहने होवन, फुल भी निकले होवन, लेकिन फल तो वांझा रह गया होवे। तो पत्नी का रिश्ता, पति का रिश्ता, इसकी भी अपनी अहमियत है, खासियत है। लेकिन इन्हां सारियां रिश्तियां दी होंद दे विच कोई मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। ये गल वखरी है कि जिसने अपने जीवन विच कदी जिगरी दोस्त बनाया नहीं, दिल दा मित्र बनाया नहीं, शायद वो मित्रता दे रिश्ते नूं ना समझे। कुछ ऐसियां गल्लां ने मनुख मां नूं नहीं कह सकदा, प्यो नूं भी नहीं कह सकदा। शायद वो किताब भरा दे सामने भी खोल ना सके, शायद वो वर्के अपनी बहन दे सामने भी पढ़ नहीं सकदा, शायद वो गुंझल वो अपनी पत्नी दे सामने भी ना खोल सके, पति दे सामने भी ना खोल सके। तो कोई सहेली चाहिए है, कोई मित्र चाहिए। और वाकई ऐसा देखने विच आया है कि जिसनू जिगरी दोस्त दिल दा मित्र नहीं लविया
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੰਢ ਕਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਠੜੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਦੇ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਅਨੰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੋਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆ। ਯਾਰ ਵੇ ਪੇ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਨ ਜੀਆਂ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਮਿੱਤਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰ ਥਕੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਏ। ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਮੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਮ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਦਵਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਜਗ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ, ਮਾਂਗਲ ਕੰਧ ਚੜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇਖੀ ਠੋਕ ਬਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੂਆ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ 100 ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪੇ ਖੋਲੋਂ ਗੰਠੜੀ, ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੁੱਖ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਖੀਏ, ਸੁਖ ਜਿਸੇ ਹੀ ਪਾਸ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਲਬਦੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਮਿਤੋ। ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਮਿੱਤਰ, ਸਿਰਮੌਰ ਮਿੱਤਰ, ਵਿਦਾਰਣ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੱਤੋ। ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਾਰਨ ਤੋੜਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਦੋਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਹਦੀ, ਦੋਸਤੀ ਕਾਹਦੀ। तो साहिब कहते मैं ऐसा दोस्त बनाया है
ऐसा मित्र बनाया है जिसने मेरी कदी दिल शिकनी नहीं की थी, जिसने मेरा कदी दिल नहीं तोड़िया। बिदारण कदे न चित्तो जांका अस्थल तोल अमितो। साहब कहते जिसका अस्थान इतना वड्डा है ना तोलिया जा सकता है ना नापिया जा सकता है। बड़ा वड्डा उसका स्थान, उसका ठिकाना जिसनों मनुखी बने हुए पैमानिਆਂ ਨਾਲ नापना तोलना गिनना अति कठिन, अति कठिन। तो जांका अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। मैं उसनों ही अपने जीवन का सखा बनाया है, मैं उसनों ही अपना मित्र बनाया है और उसने भी मेरी मित्रता कबूल कर ली है, जिसने अज तक मेरा दिल नहीं तोड़िया बल्कि मेरे जख्मां नूं मरम लगाया है, दवा कीती है और मैनू सुख ते आनंद प्रदान किया है। अप जसन मिटंत सतपुत्र है सिमर तब हृदय गुर मंत्र ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का इत्थे फरमान, किसी घर विच कोई कलंक होवे, अपजस होवे, अपजस ते कलंक दे अनेकां कारण हो सकते ने। किसी भी कारण करके कोई कलंक होवे, अपजस होवे, समुचे शहर दे विच गली महल्ले विच हर एक दी रसना ते अपजस होवे, हर एक दी रसना दे ते उस कलंक दी चर्चा होवे। पर महाराज कहते ने उस दौरान अगर घर दे विच सतवादी पुत्र पैदा हो जाए, सत नूं समझण वाला, सत नूं प्रगट करन वाला, सत दे च जीण वाला, तो साहब कहते घर दा कलंक मिट जाता है, घर दा अपजस धुल जाता है, घर दे सारे कलंक नूं वो धो के रख देंदा है, घर दे सारे अपजस नूं वो मिटा के रख देंदा है। एक उदाहरण है, एक प्रमाण है और यह भी हकीकत है कि साडे देश दे संत जन आद काल तो कहते रहे ने, ऐ जननी अगर तू जन्म देना है तो इन्हां तीन पुत्रां दे चों ही किसी एक नूं जन्म देवी। तीन सुभावां वाले पुत्रां दे चों ही किसी एक नूं या तिन्नां नूं जन्म देवी। जननी जने तां भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नो। जन्म देना है तो ऐसे भगत नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होया होवे। हुण कुदरती गल है, अगर मां दा हृदय भावना नाल भरिया होया नहीं है तो मुश्किल है उस धरती दे चों किसी भगत दा जन्म होना। सारी सत्या उस मिट्टी ने देनी है, सारा जीवन उस मिट्टी ने देना है दरखत नूं, ते दरखत दा आधार भी उस मिट्टी ने बनना है। पर मिट्टी च खासियत चाहिए है। देखते हैं किसी किसी थां दी मिट्टी ऐसी है कि वह बीजां विच बड़ा रस पा देंदी है, स्वाद पा देंदी है और लोकी हैरान होके कहंदे ने बीज ते ओही ने पर इत्थे बोए ने उन्हां च इतनी मिठास, इतना स्वाद, इतना सुअपण। तो बीज की अपनी खासियत हो सकती है पर धरती की भी अपनी महानता है, धरती का भी अपना गुण है। अनेकां तजर्बे इसते कीते गए ने कि एक इलाके दे मिठे फल जद उन्हां दा बीज दूसरे इलाके च लगाया गया वो मिठास नहीं प्राप्त हुई, वो स्वाद नहीं प्राप्त हो सकिया। कारण जद बीज होई सन तो फिर क्यों नहीं स्वाद प्राप्त हो सकिया? इस वास्ते कि मिट्टी धरती खास नहीं सी, पिता खास है, मां खास नहीं। तां जिस तरह का बालक होना चाहिए वैसा नहीं हो सकेगा। या मां महान है, पिता ही नहीं, तां भी कमी रह जाएगी। कितनी चंगी धरती क्यों ना होए, कितनी महान धरती क्यों ना होए, पर बीज ही किसी हद तक कमजोर सी, खास नहीं सी, अहमियत नहीं सी। ये परिपूर्ण परमात्मा का ऐसा नियम, बीज भी खास होवे, धरती भी खास होवे, तां जाके किधरे गल बनती है। लेकिन इस दे विच ऐसा भी देखने विच आया है
कि बीज अगर मामूली जी खासियत भी रखता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर जे धरती किधरे उसनों महान मिल जाए तो वह बीज बड़ा महान वृक्ष बनता है और जगत नूं बहुत स्वाद ते रसदायक फल देंदा है। ऐसे अनेकां उदाहरण मिलते हैं। हरनाखस ते दुष्ट जालम से, पर उसकी पत्नी रोम रोम राम दा सिमरन करदी सी। उसकी कुख तो ही प्रहलाद दा जन्म होया है। जे देखिए बीज नो ते खास नहीं है, मामूली है, पर देखिए धरती नो इतनी महान कि उसने बीज दे चों जिहड़ा वृक्ष पैदा किया है, अज तक भी धार्मिक दुनिया दे चों छां दे रहा है, रस वंड रहा है, स्वाद दे रहा है। तो आदि काल तो साडे संत जन कहंदे रहे ने, ऐ मां तू जन्म देना है तां ऐसे बालक नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होवे, भगत नूं जन्म दे। जननी जने तां भगत जन। ते जे भगत नहीं पैदा कर सकदी तां कम से कम दानी। फराग दिल मां ही किसे दानी नूं जन्म दे सकदी है, शोम मां ने। उंज भी गुरबाणी दा फैसला है, शोम मनुख किरपन बंदा, धन दा चौकीदार जरूर है, रखवाला जरूर है, धन दा मालिक नहीं है। सूमे धन राखन को दिया, मुगद कहे धन मेरा। सूमे धन राखन को दिया, शोम नो ते धन सिर्फ रखण वास्ते दिता है। शोम उसदा रखवाला है, चौकीदार है, पहरेदार है, मालिक नहीं है। उन्होंने वरत नहीं सकता, उस तो सुख नहीं ले सकता, अपने परिवार में भी सुख नहीं दे सकता, खुद भी आराम नहीं ले सकता। तो फिर धन का चौकीदार है, और की है? धन है संसारिक सहूलतां प्राप्त करने लई, ते जिन्हां जिन्हां नूं ये सहूलतां प्राप्त नहीं होईयां, अपनी तौफीक दे मुताबिक ये सहूलतां उन्हां नूं देणीआं। इस तरह दा बंदे नूं दाता कहंदे ने, फराग दिल कहंदे ने। ईरान दा सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब दा ते यह कहना है, तवंगरी बादिल अस्त न के बमाल। अमीरी किसी दे माल असबाब तो नहीं नापनी चाहिए कि इसदे कोल महल कितना वड्डा है, इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल भूमि कितनी है, इहदे कोल पदार्थ कितने ने। कहंदे ये धनवान होण दी निशानी नहीं है, वेखना उहदा दिल कितना क वड्डा है, उहदे कोल फराग दिली कितनी है। अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। बाबा फरीद कहंदे ने, है अद्धा पूरा उसदे कोल भी नहीं है, भुख उसदे कोल पूरी है, पर रोटी उसदे कोल अद्धी है। पर गजब दी गल, अद्धी दे चों भी अद्धी वंड दित्ती, किसे भुखे नूं दे दित्ती। बाबा फरीद कहंदे ने, अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। कोई ऐसा भगत जगत विच जो है मिले जिसदा अपना ही अद्धा पेट भरिया है, पूरा पेट भरिया ही नहीं, फिर भी अद्धे विचों अद्धा जो है दे देता है। तो तवंगरी बा दिल अस्त न के बा माल। अमीरी माल असबाब तो नहीं है, धन संपदा तो नहीं है, दिल तो है, फराग दिली तो है। तो संत जन कहने ने, ऐ मां भगत नहीं पैदा कर सकी तो कम से कम दानी पैदा कर, दाता पैदा कर। पर जे किधरे तू दाता भी नहीं पैदा कर सकी तो फिर सूरबीर पैदा कर, सूरमा पैदा कर। सूरबीर वो है कि हर थां ते कमजोर दे पक्ष विच खड़ा हो जाए, बस उसनों सूरबीर कहते हैं। थां थां ते एक दूजे की पग लांदा फिरे ते लड़दा फिरे कि उस लड़ाई विच जित हासिल करदा रहे, उन्होंने जालम आख्या जा सकता है, सूरबीर नहीं। सूरबीर ओ कि जिथे देखे एक कमजोर है, लिताड़िया जा रहा है, उहदे पक्ष विच खड़ा हो जाए, उसकी बावां की हिफाजत करे, उहदी जान की हिफाजत की खातर अपनी जान तक दे दे। जैसे कि इतिहास गवाह है, कश्मीर के ब्राह्मणों की बांह कमजोर हो गई, वो बांह फैला के आए आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों। साहिबा ने वो कमजोर बांह पकड़ ली
और आख्या मैं अपनी जान दे देंगा, ये बांह नहीं छोड़ांगा। आप दे नाल एक वाक जुड़ गया, बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहां न छोड़िए। मैं जान ते दे सकदा, सिर ते दे सकदा, ये बांह नहीं छोड़ सकदा। इस बांह नाल हुण मेरी बांह जुड़ गई है। ये बांह ते मेरी बांह हुण एक मिट। इतिहास गवाह है, किसी ने अपना सिर दे के इस देश दीयां कमजोर बाहां नूं मजबूत कीता, महान कीता। तो सूरबीर ओ जो कमजोर दे पक्ष दे खड़ा हो जाए, दानी जो लोड़वंद दी लोड़ पूरी कर देवे, भगत जिदा हिरदा भावना नाल भरिया रहे। तो धार्मिक पुरुष कहने ने, ऐ मां ऐ जननी, ना तू भगत पैदा कर सकी, ना तू दानी पैदा कर सकी, ना तू सूरबीर पैदा कर सकी। खामा खा अपना तन दा नूर गवाया, तन दी सत्या गवाई। एवें फिजूल बच्चे पैदा करके, धरती दा बोझ पैदा करके। हृदय राम ने ते साफ कह देता है, प्रेम सोनीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा। कै खग गए रण में भली बिरसों, लहू सुघाव चले अर्धंगा। ऐ मां ऐसा लाल ऐसा पुत्र अपनी कुख तो जन्म दे कि परमात्मा दा नाम सुने ते रोम रोम दे झरनाट वज जाए और उसके नेत्र सज्जल हो जान। इतना कोमल हृदय दा पैदा कर। कि जे तू इतना कोमल नहीं पैदा कर सकती, तो फिर ऐसा सख्त पैदा कर कि रणभूमि दे सच दी खातर लड़दियां लड़दियां ਉਹਦੇ सैकड़े टुकड़े हो जान, तां भी हार ना मने। रोम रोम जख्मी होवे, तां भी उसकी सूरबीरता नूं दाग ना लगे। ऐसा सूरबीर पैदा कर। कै खग में रण में भली बिदसों, लहू सो घाव चले अर्धंगा। विद दोए पूत जने जननी, जग और सबे सुत कीट पतंगा। बस यही ते पुत्र होणगे, कोई सूरबीर होवे, दाता होवे, दानी होवे। मां इस तो बाद अगर तू जो कुछ भी पैदा करेंगी, वो कीड़े मकोड़ियां तो ज्यादा कुछ नहीं होंगे। सिर्फ कीड़े मकोड़े, धरती दा बोझ, धरती दा भार। गुरु रामदास जी महाराज ने भी साफ कह देता है, जिन हर हृदय नाम न बसे हो, तिन मौत कीजे हर बांझा। तिन सुनी दे फिरे बिन नामे, ओए खप खप मोए करांजा। तो मुख्तसर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, अगर कोई सत्यवादी पुत्र घर विच पैदा हो जाए तो भगत सत्यवादी है, दानी सत्यवादी है और सूरबीर सत्यवादी है, सच दा पक्ष लेंदा है। इस तरह का कोई पैदा हो जाए तो घर दे कलंक धुल जांदे ने, घर दा अपजस मिट जांदा है। अपजसं मिटंत सत पुत्र है, सिमर तब हृदय गुर मंत्रणे। जिस तरह घर दा कलंक एक सतवादी पुत्र धो देंदा है, तिवें गुरमंत्र दा जाप, प्रभु दे मंत्र दा जाप हृदय दे सारे पाप धो देंदा है, हृदय दे सारे कलेश धो देंदा है, हृदय दे सारे दुख मिटा देंदा है। प्रीतम भगवान अचुत, नानक संसार सागर तारणे। जप करदियां मंत्र दे जाप द्वारा ओ प्रीतम, ओ परिपूर्ण परमात्मा भगवान अविनाशी उस जपण वाले नूं संसार सागर तो पार कर देंदा है। कोई दुख उसनूं व्यापदा नहीं। मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। लभणं साध संगेण नानक, हर पूरब लिखणे। शरीर दे जो श्वास चल रहे ने, इसनूं जिंदगी आखदे ने। ते चलदे होए श्वास जे किधरे रुक जान ते इसनूं ही मौत आखदे ने। पर ये शरीरक जीवन है, शरीरक मौत है। आध्यात्मिक जीवन किसे होर गति ते खड़ा है और उस गति दे रुकदियां आध्यात्मिक मौत हो जाती है। साहब कहते हैं, मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। श्वास चलते रहे, शरीर की जिंदगी है, सिमरन चलता रहे, याद चलती रहे तो रूहानी जिंदगी है।
अध्यात्मक जीवन है। मरणं बिसणं गोविंदे, जिन्हों गोविंद भुल गया समझ लो मौत है ते मर गया। यही मौत है। केड़ी? रूहानी मौत। और रूहानी मौत अगर किसी दी हो गई है, अध्यात्मक मौत किसी दी हो गई है, तो बाकी दा जीवन एक बोझ होगा। चाहे वो शारीरिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनैतिक जीवन है, परिवारिक जीवन है, सारे दा सारा उस मनुख लई बोझ होगा अगर उस कोल रूहानी जीवन नहीं है, अगर उसदे कोल अध्यात्मक जीवन नहीं है। एक गल वखरी है कि शरीरक मौत हो जाए तो फिर उसे शरीर नू जीवित करना कठिन है, बहुत कठिन है। पर रूहानी मौत हो जाए, अध्यात्मक मौत हो जाए, इस मौत नू फिर जिंदगी दिती जा सकती है, फिर जीवन दिता जा सकता है। मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवनं हर नाम दे आवणे। अगर हरि नाम दे ध्यान जोड़िया जाए, सिमरन का हिस्सा बना लिया जाए, रसना द्वारा उसका जाप जारी रहे, तो साहब कहते हैं फिर ये जीवन प्राप्त हो जाता है। फिर ये अगम्य जीवन, रसदायक जीवन उसनों प्राप्त हो सकता है। तो रसना जप करे, इस जीवन की प्राप्ति होवे। आखिर कोई था, कोई साधन, कोई वसीला, तो साहब कहते हैं हाँ वसीला भी है, साधन भी है। लभणं साध संगेण नानक, हर पूरब लिखणे। पूर्वले संस्कार होवन, पूर्वली प्रालब्ध होवे, ते साध संगत नसीब होवे, बस उत्थे ये रूहानी जीवन लभ पैंदा है, उत्थे ये अध्यात्मक जिंदगी जो है लभ पैंदी है। जैसे कोई शारीरिक तल ते मुर्दा है तो फौरन दिखाई दे जाता है ये लाश है, ये जीवदा जागदा नहीं है। हू बहु धार्मिक मनुख फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, इहदे कोल धार्मिक जीवन नहीं है। जैसे आर्थिक जीवन रखण वाले फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल आर्थिक जीवन नहीं है। अर्थ दी दुनिया विच इसदी मौत है, क्योंकि इसदे कोल धन नहीं है, आर्थिक मौत है। इसी तरीके नाल कईयां दी राजनीतिक मौत आउंदे ने। सियाणे बंदे कह देंदे ने ये राजनीति विच मर चुके हैं, उस दुनिया विच इसदी कोई होंद नहीं, इसदा कोई नामो निशान नहीं। किसी वक्त जीवदा जागदा सी, अज नहीं। तो फौरन इस गल दा पता चलता है कि इसदे कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, अध्यात्मक जीवन नहीं है। साहब कहंदे ने ये अध्यात्मक जीवन लभदा है उस संगत दे चों जिथे साधक बैठे ने, जुड़े हुए बैठे ने, ते गुरु दी किरपा दे पात्र बने बैठे ने। उत्थों दा माहौल, उत्थों दा वातावरण प्रेरित करेगा। उत्थे बैठ के इस जीवन दी प्रेरणा मिलेगी, इस जीवन हासिल करने दी गति मिलेगी, समर्था मिलेगी, और फिर मनुख उस जीवन नू प्राप्त कर लवेगा जिसनू कहंदे ने परम जीवन, महान जीवन, सब तो उच्चा जीवन। जीवो नाम सुनी। साहब कहंदे ने मैं ते हुण जीवदा नाम सुन सुन के। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। सतगुरु दा फैसला ओही जी रहा है जिस दे हिरदे विच परमात्मा दा नाम है। सो ही जीवे जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। दूजे जीवदे नहीं पे, चलदियां फिरदियां लाशां ने, भजदियां दौड़दियां ये लाशां ने, कठपुतलियां ने। इन्हां 'च जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। जीवन ते उत्थे ही है जिथे प्रभु दा चिंतन है, प्रभु दी याद है। दसन बिहू भुयंगं मंत्रं गारुणी निवारं। व्याध उपाड़न संतन, नानक लबद कर्मणे। जत कथ रमणं शरणं सर्वत्र जीयणे। तथ लगणं प्रेम नानके, प्रसादं गुरु दर्शने।
चरणार बिंद मन विध्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलने गाथा गावंत नानक भवन परा पूर्वणे दसन बिहोन भंगम मंत्रं गारड़ी निवारण। एक दौर साडे देश विच ऐसा लंघिया है कि हर तरह का उपचार मंत्रां दे राहीं हुंदा सी। कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, बस उसका समाधान, उसका इलाज मंत्रां दे राहीं हुंदा सी। ये काल, ये दौर बहुत लंबे समय तक रहा है और चूंकि रोग अनेकां ने, अनेकां तरह की पीड़ा है, अनेकां तरह के कल कलेश ने, एक एक व्यक्ति हजारां तरह की पीड़ा भी पंड चुकी फिरदा है। तो एक दौर ऐसा चलिया, मांदरी अगे आए, मंत्री अगे आए, मंत्रां नाल उपचार करते रहे। चाहे अख दुखदी है, चाहे दाड़ दा दुखना है, चाहे पेट दा दर्द है, चाहे तरह तरह के रोग बीमारियां ने, या कुछ घरेलू कल कलेश है, इन्हां दा इलाज मंत्रां नाल हुंदा रहा है। और वख-वख मंत्रां दे अपने अपने नाम सन। बिच्छू दे डंग दा मंत्र, सप दे भी डंग दा मंत्र। वो जो मंत्र सप दी जहर उतार देंदा सी ते सप नूं बेहोश कर देंदा सी, उस मंत्र दा नाम है गौरड़ी मंत्र, जिसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच कर रहे हैं। अनंत काल तो साडे देश दे सपेरे और कुछ होर सियाणे इस मंत्र दी वाकफियत रखते आए ने और इस मंत्र दे जाप दे नाल वो सब पकड़ते रहे ने। और उन्हां दा अज भी ऐसा कहना है कि साडा मंत्र 1 साल तक ही काम करता है, खास करके फनीर नाग उसनों असी साल तो बाद छोड़ देंगे हैं और छोड़ते हुए ये देखे गए ने। तो एक गल स्पष्ट है कि मंत्रां दी अपनी महिमा गुंजार पाके जद कोई मंत्र दा जाप करदा है, उसदे नाल जो तरंगां बनदियां ने, उसदे नाल जो वाइब्रेशन बनदी है, मनुख दा अपना हिरदा ते अंदोलित होंदा है, पर उस मंत्र दी, उस तरंग दी लपेट दे जेड़ा जेड़ा आवेगा वो भी अंदोलित होवेगा, वो भी प्रभावित होवेगा, वो भी प्रभावित होए बिना रह नहीं सकेगा। अज भी देखण दे च आया है बौद्ध भिक्षु कट्ठे बैठ के मंत्र दा जाप करते हैं। अज भी गुरु घर विच परंपरा बनी हुई है, कट्ठे बैठ के कीर्तन करो और गुंजार पा के कीर्तन करो। उस नाल जो तरंगां बननगियां हिरदे दी यकसुई दा बाइस बननगियां, मन नूं एकाग्र करनगियां, आनंद प्रदान करनगियां। ते हिरदा एकाग्र हो जाए, मन यकसू हो जाए, अनेका रोग अपने आप रुखसत हो जाते हैं, क्योंकि बेशतर रोग, बहुत सारे रोग शरीरक ना होके मानसिक ने। तो खैर एक दौर ऐसा लंघिया है जद अजे मनुख नूं जड़ी बूटियां दा ज्ञान नहीं सी, अजे आयुर्वेदिक आलमे वजूद विच नहीं आई सी, अजे यूनानी तिब सामने नहीं प्रगट होया सी। तो इन्हां पश्चिमी देशां विच भी ते यूरोप दी दुनिया विच भी मंत्रां दे राहीं उपचार होंदा रहा है। सूफी फकीर मंत्रां दे नाल उपचार करते रहे ने और अज भी देखण विच ऐसा आउंदा है। अफगानिस्तान दा इलाका, पठानिस्तान दे इलाके च अज भी सप ते बिच्छू दे दर्द नूं मंत्रां दे नाल उपचार कीता जांदा है, दूर करन दी कोशिश कीती जांदी है। साडे देश दे च भी अज भी दाड़ दा दर्द, कन्नां दे दर्द, गले पै जाना, टॉन्सिल इत्यादि इन्हां नूं अपने अपने ढंग दे मंत्रां दे जाप नाल दूर करन दी जो है कोशिश कीती जांदी है। ये गल वखरी है कि मंत्रां दे उच्चारण करन वाले च अज वो शक्ति नहीं, जैसे
ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਵਨ ਪਰ ਹਕੀਮ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਸਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਤਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸਚ ਬਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਖੇੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਸਵਸਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਸਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, दसन बिहोन भुयंगं मंत्रं गारुड़ी निवारण। जैसे सपेरा गारड़ी मंत्र दा जाप करके सप नूं दंदां तो बिना कर देंदा है, दसन बिहोन दंदां तो बिना कर देंदा है और सप दी जहर उतार देंदा है। इस मंत्र दा नाम गारड़ी मंत्र। एक उदाहरण, ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद कर्मणे। विरले ही संत जन ऐसे ने जो परमात्मा दे नाम मंत्र दा जाप करके अपने जीवन दे चों विकारां दी जहर कढ देंदे ने। जिंदगी दे चों सारी जहर नूं निकाल के परे सुट देंदे ने। जीवन विच जहर की है? जीवन विच क्रोध एक जहर है, लोभ एक जहर है, अहंकार एक जहर है, मोह एक जहर है, काम सीमा तो वधे होया जहर है। अति क्रोधी, अति कामी, अति हंकारी मनुख अति जहरीला हुंदा है, अति जहरीला। उहदी दृष्टि विच भी जहर टपकेगी, उहदे बोलां विच भी जहर प्रगट होवेगा। उहदे उठदियां बैठदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ भी उसदे शरीर चों निकलणगीਆਂ, वातावरण ਨੂੰ दूषित करनगीਆਂ, अपवित्र करनगीਆਂ, क्योंकि जहरीला है। प्रभु मंत्र दे जाप नाल ये जहर अमृत बन जाती है। मैला अगर बेरे हैं भयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। जहर ते अमृत की कोई बहुत वड्डी दूरी नहीं है, पड़ोसी ने, निकटवर्ती ने। हो गुजरिया इस सदी दा बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक उर्दू दा शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। वो कहता है, जो जहर हलाहल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। इते पीण दा ढंग है। ਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਭਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਜਬ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗੈਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਵੀਰੋ? ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੋ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।